Hello bankers, a very good evening to all of you. Welcome back. So guys, आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 90 days basically plan for your JIB June 2000 May 2025 examination. Okay. So guys, now we have date in our hand. ठीक है, तो हमारे पास डेट है. ठीक है. So JIB 2025 first session will be conducted in the month of May 2025 itself. ठीक है. So these are the date 4th, आपका 10th, 11th and 18th. ठीक है. So now what is the problem with this particular date? So you are going to face two paper back to back. ठीक है. AFM and PPV आपका back to back face करने वाले हैं and your registration will start from tomorrow itself. ठीक है. तो कल 4 फरवरी आपका जहां से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे एंड इट विल लास्ट टिल 18 फरवरी आपका. ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि सी देयर आर सम अर्ली रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स आर अवेलेबल. ठीक है. सो लाइक आपका नियर बाय सेंटर एंड प्रीफर्ड टाइम लोकेशन इन ऑल. ठीक है. सो आई हैव डन वन वीडियो बेस्ड ऑन हाउ टू टेक मेंबरशिप ऑफ IIBF एंड हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर वन. तो क्लियर कट मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन आपका किया हुआ है, उसके थ्रू आप वहां पे जा सकते हैं. बट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं how to prepare for this examination. ठीक है. And what should be your strategy in 90 days. ठीक है. So I hope you all know कि like how many subjects are there and the weightage and all. ठीक है. So we have 4 compulsory subject: IN, IFS, paper 1, paper 2, PPV, paper 3, accounting and financial management for bankers, and paper 3 आपका retail banking and wealth management. So my first recommendation is यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज टू पेपर. ठीक है. क्योंकि आपका 10th को होगा PPB, 11th को होगा आपका AFM. यू विल नॉट गेट टाइम फॉर दिस वन, यू विल गेट टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर वन. दिस इज योर वेरी फर्स्ट पेपर. सो आप मोटिवेटेड रहेंगे, काफी टाइम इसको देंगे, एटलीस्ट 10-15 days. ठीक है. For this, we do not have that much time. For this, also retail banking, we have 1 week, complete 1 week. And if you'll follow my plan, I'll make sure you'll score 65 plus in your retail banking within that particular week itself. So the challenge is this. तो आप इस challenge को समझिए. आपका जो सेकंड सैटरडे वाला होता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपका है. ठीक है. तो ये आपका जिस पे सबसे ज्यादा और सबसे पहले हमें आपका काम करना है. ठीक है. नाउ all the 4 subject we have 4 module. ठीक है. So module wise strategy, basically if you talk about the module wise strategy, so IN IFS paper 1, the most important module is module D, the most important. ठीक है. So D and you can make a combination of these 3. ठीक है. अब देखो ये क्या है ना, मॉड्यूल डी सबसे हाईली वेटेज है. वी हैव 17 यूनिट्स व्हिच आर जनरली पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है. तो ये आपका रेस्ट आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है. in case of PPB, so we have like kind of a mix. ठीक है. तो PPB में सारे ही मॉड्यूल आपका इक्वल वेटेज के हैं. ठीक है. In case of AFM, again all the 4 module have equal weightage. ठीक है. Same questions type and same number of question. In case of RBWM, these 3 module have maximum weightage because ये जो आपका इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग है, वी हैव ओनली 4 यूनिट इन दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है. तो बाकी जो मैक्सिमम आपका रहेगा वो इस एरिया से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे. सो नाउ व्हाट वी विल डू फर्स्ट, like by the end of March 2025 itself, we are going to complete our 2 subject. One is AFM, which is 90% already done. आपका done means concept classes, unit wise MCQs, आपका यूनिट वाइज रिवीजन, मॉड्यूल वाइज रिवीजन. ठीक है. एंड वी हैव मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल मॉक टेस्ट. ठीक है. तो जहां पे 27 या 28 यूनिट तक मैंने कंप्लीट करा दिया है, ओनली 6 और 7 यूनिट्स आर रिमेनिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीक इटसेल्फ. देन along with that we will start with IN IFS. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, एंड आपका मार्च तक वी आर गोइंग टू कवर these 2 subject. ठीक है. In the month of April, so I'll provide you content for this also. ठीक है. During this particular period, ठीक है. By 15th April I'm going to cover this particular one also. ठीक है. And from like 1st April or like from mid March, so this ma'am will start taking session about this particular one. ठीक है. तो ये मार्च में ही आपका मैम भी स्टार्ट कर देंगे एंड आई विल बी टेकिंग दीज 3 सब्जेक्ट. तो तब तक हम लोग आपका 100% आपका रेडी होंगे. रेडी मीन्स आपका कॉन्सेप्ट, आपका यूनिट वाइज प्रैक्टिस MCQs एंड केस स्टडीज, एंड आपका मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट इज अवेलेबल, ऑलरेडी अवेलेबल फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट.
and all the 4 module of each subject and full length 5 mock test for each subject, ठीक है। तो ये हमारे ओवरऑल आपका आइडिया है, ठीक है। सो दिस इज वी डन विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। इस आपके फॉर्म फिलिंग तक ये सब कुछ मैं कर लूंगा, ठीक है। ये हम लोग आपका इसको स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड 4-5 यूनिट्स, आई विल कीप पब्लिशिंग दोस पर्टिकुलर वन जस्ट आफ्टर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। इसके अलावा मार्च मंथ के अंदर दिशा मैम विल आल्सो ज्वाइन। सो मार्च मंथ का, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा यूनिट है, सो मैम विल टेक वन, और जो छोटे यूनिट है उनको तो विद इन 30 days or like by the first week of April will be done with this particular one. That time I'll cover this particular one. तो ये सारी चीजें आपका जो हो जाएंगी। मूल मंत्र क्या है, ठीक है। इफ यू अप्रोच मी कि सर आप कैसे पढ़ना है और क्या हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए, सो आई ऑलवेज रिकमेंड यू फर्स्ट वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट। आई एम नॉट सेइंग कि आप 1000 आपका 1000 आवर्स के वीडियो वाले कोर्स पे जाइए, नेवर, ठीक है। कॉन्सेप्ट विच आर रेलिवेंट फॉर योर जेआईबी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एक मतलब हर एक टॉपिक है, उसमें इधर उधर की कहानियां बहुत हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर आपका काम करेंगे, ठीक है। देन आपका यूनिट वाइज एमसीक्यूज, मॉड्यूल वाइज मॉक, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन will be coming with the marathon session for module wise as well as महामैराथन। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे ना, you will score 65+ in each and every subject if you are even an average। आप मतलब 1-1.5 घंटा भी अगर डेली बेसिस पे दे रहे हैं, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट दी एरियाज, ठीक है, जैसे क्वेश्चन यू विल गेट 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स एंड हाफ मार्क्स, ठीक है। सो 2 मार्क्स क्वेश्चन दे जनरली बिकम गेम चेंजर, और सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। इफ यू आर वेल इन द कॉन्सेप्ट, जैसे आपको एनपीवी कैलकुलेट करना आता है 2 मार्क्स, ठीक है। अगर आपको डेप्रिसिएशन, आपका रिटर्न डाउन वैल्यू, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, इनके कॉम्बिनेशंस को आते हैं तो आपका 2 मार्क्स, ठीक है। रेशियो एनालिसिस में आपका, या फिर ऐसे जो मतलब इंपॉर्टेंट, जैसे आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बॉन्ड से वाईटीएम, करंट यील्ड, ये कुछ क्वेश्चंस है ना, मतलब 2-2 मार्क्स के। मॉड्यूल डी से आपका बहुत सारे, तो ऐसे हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और 2 मार्क्स मतलब यहाँ पे आपको 4 सही करने पड़ेंगे, तब आपका 2 मार्क्स बनेंगे। इस केस में यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आपको उस तरीके का आपका लीड देगा। तो कॉन्सेप्ट इसीलिए यहाँ पे आपको ये हेल्प कर रहे होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस बार आईआईबीएफ थोड़ा कोशिश करेगा पेपर को और टफ बनाने का, जैसे उन्होंने सीआईबी के साथ किया था। सो यू विल गेट 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। यूजुअली यू विल गेट 22 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। आपका 40 हाफ मार्क्स क्वेश्चन, एंड दिस आपका 20 आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना हो गया, 40, 40, 80 एंड 20, ठीक है। सो 21 मार्क्स क्वेश्चन। अब हाफ मार्क्स क्वेश्चन मोस्टली आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कई बार, जैसे एक बार था कि हाफ मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा टफ थे कंपेयर टू योर 1 मार्क्स, बट यूजुअल आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये थोड़ा सा अप्लाइड वर्जन में, और ये आपका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन इन केस स्टडीज से रिलेटेड आपको मिलेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल यू विल गेट 100 क्वेश्चन एंड यू हैव टू स्कोर downside 50, ठीक है। बट इफ यू फॉलो द प्रोसेस यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द 50 मार्क्स एंड ऑल, ठीक है। सो पास क्राइटेरिया इज लाइक यू हैव टू स्कोर 50 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो आपका 100 में से आपको 50 मार्क्स लेके आने हैं दोस्तों, ठीक है। तो बहुत आसानी से आ जाएंगे अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोज हु आर गोइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो आपके पास एक एज होगा, दैट एज इज बेसिकली आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सिंगल अटेम्प्ट के अंदर आपका, देखो सिंगल अटेम्प्ट में पास करने का ये एक बहुत अच्छा हो जाता है कि लेट्स से एक सब्जेक्ट था जिसके लिए आपने नहीं पढ़ा था ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। सो यू स्कोर लाइक यू हैव टू स्कोर डाउनसाइड 45, कम से कम आपको 45 लाने हैं। तो हम क्या करेंगे, पेपर 1 में हम 45 लाए, पेपर 2 में हम 55 लेके आएंगे, पेपर 3 में हम 50 लेके आए, सपोज दैट यहाँ पे हम लोग लेके आए सपोज दैट 59, तो भी आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। या प्रोबेबिलिटी ऐसी भी हो सकती है, आप 45, पेपर 1 45, पेपर 2 45, पेपर 3, और आरवीडब्ल्यू में हम लोग लेके आ गए 65, तो भी हमारे कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, एंड यू विल बी डिक्लेयर एज पास, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपके अर्थमेटिक काम करते हैं, बट इसमें मैं आपको अभी ज्यादा उलझने के लिए नहीं बोलूंगा। इस पे हम आएंगे उन कैंडिडेट के लिए जो एग्जाम के 1 हफ्ते पहले आएंगे, और मतलब 80% वही होते हैं जो एग्जाम के 1 हफ्ते पहले आते हैं कि सर आप क्या करना है ये बताओ, इसमें कैसे हमें इस अर्थमेटिक को कैसे समझना और बैलेंस आउट करके कैसे सर्टिफाइड होना है, ठीक है। और वो प्रॉमिस भी करते हैं कि सर हम सीआईबी में पक्का पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। तो ये आपका जो केस है, ठीक है, समझ में आया। तो ओवरऑल आपका कितना होना चाहिए, 200 स्कोर होना चाहिए सिंगल अटेम्प्ट, बट ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल अटेम्प्ट, ऐसा नहीं आपने पिछला अटेम्प्ट दिया है
और पिछले अटेम्प्ट में आपने 2 सब्जेक्ट का आपके पास क्रेडिट है, तो अब जो रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट है उनमें आपको 50-50 स्कोर करना होगा डाउन साइड आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 बुक आपकी हैं। अगर आप मेरे से पूछते हैं बुक कौन सी अच्छी है, लाइक कल ही मेरा एक सर से बात हो रहा था कि लाइक ही वाज, मैंने उनको बोला कि सर किंडल वर्जन इज आल्सो अवेलेबल फॉर दीज वन। कंसर्न वाज वेरी जेन्युइन कि सर हम दिन भर आपका 8-10 आवर्स सिस्टम के आगे होते हैं, तो देन लाइक नहीं हो पाता उतना। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा बहुत काम करना चाहते हैं, सो दिस इज द वन। ठीक है, दीज आर दी बेस्ट बुक, इसके अलावा इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। द ओनली चैलेंज विद दीज पर्टिकुलर बुक आर लाइक इट्स अ 700 पेज, आपका 800 पेज कहाँ गया पीपीबी। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, तो अब इनका जो समरी वर्जन है अगर वो आपको मिल जाए कंटेंट में, या जब भी आप पढ़ो कहीं से भी पढ़ो, कोशिश करो कि जो कंटेंट हो आपका वो इनके साथ अलाइन हो, बिकॉज you will get 90% questions from this particular book itself। ठीक है, downside 90%। तो ये आपके लिए बुक्स हैं। ठीक है, तो क्या करना है ये मैंने आपको समझा दिया है। कल आपका फॉर्म फिलिंग हो जाएगा। ठीक है, कल से आप फॉर्म फिलिंग करेंगे, और अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में चाहते हैं ये सारी चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाए with responsibility, so you can access to my courses also। ठीक है, JIB मंजिल 2.0 फाउंडेशन बैच आपका। ठीक है, तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो जहां पे आपको लाइक फाउंडेशन मींस इट इज द काइंड ऑफ महापैक आपका जो होता है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लासेस, यूनिट वाइज एमसीक्यूज, मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट, मॉड्यूल वाइज रिवीजन वीडियोस, मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, तो कैसे एक्सेस करोगे मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, एंड साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगा कल से। ठीक है, तो दिस इज माय वेबसाइट गाइस, आप यहाँ पे जाएंगे कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो अगर जैसे किसी का एक ही सब्जेक्ट में रह गया है तो आप वो मुझे लिख सकते हैं, जैसे IN IFS, AFM का ऑलरेडी बना हुआ है, IN IFS का मैं बना दूंगा। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे अगर हम लोग देखते हैं आपका ये मतलब यहाँ से मंजिल बैच आपको फाउंडेशन आपका ये दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि प्राइस ज्यादा है आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इसको कहीं ना कहीं कूपन कोड के साथ और सस्ता कर दूंगा। ठीक है, ये सब अपने हाथ में, आप जैसे बोलोगे वैसे करेंगे। पॉइंट इज कि आपको ये आपका जो एग्जाम है वो क्लियर करना है। ठीक है, दूसरी तरफ लाइक व्हाट यू कैन सी, अगर आप बिल्कुल एकदम चिल होकर पढ़ना चाहते हैं, आप थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं वीडियोस को खुद से, तो आई विल रिकमेंड दिस पर्टिकुलर वन। मॉक टेस्ट के लिए आपको आना पड़ेगा, बट अदरवाइज दिस इज द वन। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आपका BFM केस स्टडीज ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, वेयर इज AFM। ठीक है, जिस पे अभी हम लोग काम करें, MCQs एंड कॉस्ट। ठीक है, अच्छा इसमें ओनली 5 वीडियोस आपका दिखा रहा है, जस्ट अ मिनट। हाँ 5 नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो AFM MCQs एंड केस स्टडीज, देखो आप लोग 30 वीडियोस आर ऑलरेडी देयर। ठीक है, सो मैंने इसमें आपका 30 वीडियोस बना दी हैं आपके लिए। ठीक है, 30 वीडियोस मींस 27 यूनिट्स तक आपका इसमें, जैसे ये 23 नंबर का यूनिट है, सारे बहुत ज्यादा डिटेल में। ठीक है, 1 आवर 4 मिनट। ठीक है, इतना डिटेल में आपको मिलेगा। और अगर आपने ये कर लिया ना, तो जो खाली सोचने के 45 मार्क्स वाला हो आप इनसे आ जाओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग उस लेवल का बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वेबसाइट पे भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करोगे तो सारे जो स्टडी मटेरियल है वो आपको फ्री में आपका फ्री सेक्शन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। मॉक टेस्ट अगर लगाना चाहते हो तो इसमें मैंने मॉक टेस्ट भी आपका डाल दिए हैं फ्री सेक्शन के अंदर भी, सब्जेक्ट वाइज। तो जैसे आप JIB में जाओगे तो सब्जेक्ट वाइज तभी उनके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिनके नहीं होंगे आई विल अपलोड, तो आप इनको पार्टिसिपेट भी कीजिए और अपना स्कोर भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 90 डेज हमारे पास है, मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट। आई एम नॉट आस्किंग फॉर 5 आवर्स 6 आवर इन अ डे, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, 10 घंटे जॉब करने के बाद 4 घंटे देना इज इम्पॉसिबल। ठीक है, सो व्हाट यू वी आस्किंग, लाइक गो फॉर जो भी हमने कंटेंट आपका करें रेगुलर 1 घंटा या 1.5 घंटा, जब भी आपको टाइम मिले, स्पीड रिवीजन या जैसे भी आप कर सकते हैं वो उस तरीके से आप करिए। ठीक है, दूसरा जैसे मतलब हमारी स्पीड के साथ चलिए, आप ऑटोमेटिकली कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो वो, और वीकेंड पे आप प्लान कर सकते हैं, सैटरडे संडे में जो पिछला छूटा हुआ बैकलॉग्स उनको कवर अप कर लें, या प्रैक्टिस आप कर लें इस तरीके से। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपके कल से स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने एक वीडियो किया है पहला कि हाउ टू टेक मेंबरशिप ऑफ IIBF की मेंबरशिप कैसे लोगे, अप्लाई नाउ मेंबरशिप पे एक कंप्लीट वीडियो किया हुआ है। आफ्टर दैट, आफ्टर टेकिंग मेंबरशिप, you have to log in, you have to apply as member or non-member, banker or non-banker, and you have to register for this one। ठीक है, तो कल आपका अराउंड 5 PM के अराउंड से आपके रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा,
और उसी तरीके से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन भी कर लें और अपनी तैयारी भी कर लें, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, इफ यू नीड एनी हेल्प, जस्ट फील फ्री टू रीच अस आउट, ठीक है, ऑन टेलीग्राम और इन कमेंट सेक्शन और द अदर मोड लाइक एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझे चैट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी एरिया से आप कनेक्ट कीजिए। आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो बढ़िया से पढ़ते हैं आपका, ठीक है, पढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, अपना मोटो है। और आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत बढ़िया से मचाएंगे आपका, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज इट, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।